کہ جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج رضوانہ کی خیریت دریافت کرنے کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اس بورڈ کا حصہ ہیں اور ملتان سے ہمارے نشتر ہاسپٹل کے وائس چانسلر یہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے اسپیشلی بلائے گئے وہاں سے، کیونکہ ان کی ایکسپرٹی بھی ہے جس آئی سی یو کی ہے، جس کے لیے میرے خیال میں اس کے لیے ضروری تھا، تو یہ بھی اسپیشلی آئے ہوئے ہیں۔ تو ہماری حد الامکان کوشش ہے، میں نے اس کی والدہ سے بھی یہ کہا کہ سب سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اس کو دیں، اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ہینڈل کریں گے۔ ہمارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ اسلام آباد کا کیس ہے تو ہم صرف پش کر سکتے ہیں، وہ ہم کریں گے، اور پلس جو ہمارے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ لکھی ہے تو اس کو ضرور یہ سارے ڈاکٹر مل کے بچائیں گے۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سر جس کا کوئی نہیں اس کے اللہ کے بعد اس کے آپ ہیں اس وقت، اور جس طرح آپ ہسپتالوں میں دورے کر رہے ہیں اور ہسپتالوں کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ میو ہاسپٹل بھی آپ گئے اور سروسز میں بھی آج آپ نے 3 گھنٹے میٹنگ کی، تو میرے خیال میں یہ جو دورے ہیں یہ لاہور سے باہر بھی ہسپتالوں میں ہوں گے، کیونکہ لاہور کے باہر کے ہسپتالوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ سروسز ہاسپٹل کی حالت دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا۔ ہسپتال کی خرابی کے ذمہ دار ڈاکٹر نہیں، حکومت ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں سروسز ہاسپٹل کو بہتر کر دیں گے، جتنے بھی فنڈز لگیں گے لگا دیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سروسز ہاسپٹل کا دورہ، میڈیکل یونٹ 1 کا افتتاح اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم حکومت چلا رہے ہیں، صوبے اور عوام کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سروسز اسپتال کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے میڈیکل یونٹ 1 کا افتتاح کیا اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ سروسز اسپتال میں سینئر ڈاکٹر سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ سروسز اسپتال کی حالت دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا۔ ہسپتالوں کی خرابی کے ذمہ دار ڈاکٹرز نہیں بلکہ حکومت ہے۔ ہر نیا آنے والا پرانے ہسپتالوں کی بہتری کی بجائے نئے ہسپتال بنانے کی بات کرتا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہسپتالوں کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر انہیں مردم شماری کے حوالے سے اجلاس میں بلایا گیا تو ضرور شریک ہوں گا۔ جو سروسز ہاسپٹل کی کنڈیشن ہے، لٹرلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس ہاسپٹل میں نہ بھیجوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو آپریشن تھیٹرز کی کنڈیشن تھی، جو وارڈز کی کنڈیشن تھی، وہ باقی ہاسپٹل کی کنڈیشن تھی، وہ بہت بری تھی۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ تو نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے۔ جو بھی ادھر آ کے بیٹھتا ہے کہ جی نئے ہاسپٹل بنا دیں، نئے چیزیں کر دیں، کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کی حالت دیکھ لیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم حکومت چلا رہے ہیں، صوبے اور عوام کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ اگلے چند ہفتوں میں سروسز اسپتال کو بہتر کر دیں گے۔ 5 یا 7 ارب جتنے بھی لگے ہم اگلے چند ماہ میں لگائیں گے۔ ہمارا رول ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں۔ ہم 5، 7، 8 ارب جتنے پیسے لگیں گے ہم اگلے چند ماہ میں وہ لگا دیں گے۔ اور آپ کو کہ ایک چیز ہے، کہنے والی بات ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہم آپ کو اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں اس ہاسپٹل کو ریویمپ کر دیں گے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں میو ہسپتال میں صحت کی سہولتوں کی بہتری اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ میو ہسپتال کی او پی ڈی، ایمرجنسی اور چائلڈ بلاکس کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے میو ہسپتال میں نرسوں کی تعداد بیڈز کے تناسب سے پوری کرنے کی ہدایت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ کے سروسز اسپتال کے دورے کے دوران وارڈز کی لفٹ بند ہونے سے میت اسٹریچر پر ڈال کر لواحقین کو انتظار کرنا پڑا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مزید 4 آپریشن تھیٹرز بند کر دیے گئے۔ پی آئی سی کے 4 آپریشن تھیٹرز کو مینٹیننس اور ریپیئرنگ کے نام پر بند کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی سی کے 9 آپریشن تھیٹرز بند پڑے ہیں۔ آپریشنز کی لسٹ بن رہی ہے، نہ ہی مریضوں کی سرجری ہو رہی ہے۔ ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر تحسین نے کہا کہ ہسپتال میں 3 آپریشن تھیٹرز آپریشنل ہیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مزید 4 آپریشن تھیٹرز بند۔ کوئی متبادل انتظام اور پلاننگ بنائے بغیر مینٹیننس اور ریپیئرنگ کے نام پر آپریشن تھیٹرز کو بند کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی آئی سی کے 9 آپریشن تھیٹرز بند پڑے ہیں۔ کسی بھی مریض کی سرجری کے لیے آپریشن لسٹ تک نہیں بن رہی۔ پی آئی سی کے آپریشن تھیٹرز میں روزانہ 12 سے 14 مریضوں کی سرجری ہوتی ہے۔ 1 اگست کو بھی 10 مریضوں کی سرجری ملتوی کر دی گئی۔ مریضوں کی جانب سے بلڈ سمیت تمام انتظامات کر لیے گئے لیکن سرجری نہ ہوئی۔ سرجری ملتوی ہونے کی وجہ سے بلڈ بوتلیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق تھیٹرز کو بغیر کسی ٹھوس وجوہات کے بند کیا گیا۔ ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر تحسین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 4 آپریشن تھیٹرز بند ہیں، لیکن اسپتال میں 3 آپریشن تھیٹرز آپریشنل ہیں جہاں مریضوں کی سرجری ہو رہی ہے۔
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान से अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप हॉल रोड के सदर बाबर महमूद की क़यादत में वफ़द की मुलाकात, मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब कहते हैं कारोबारी अफराद मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत की कोशिशों से मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, बताइए। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान से गवर्नर हाउस लाहौर में अंजुमन ताजरा खिदमत ग्रुप हॉल रोड के सदर बाबर महमूद की क़यादत में एक वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की माशी सूरत पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि कारोबारी अफराद मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत की शबाना रोज कोशिशों के नतीजे में मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। मुल्क में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं जो मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल की नवीद है। ताजर बरादरी की मुल्की मुआशी तरक्की के साथ साथ फलाही कामों में भी खिदमात काबिल तारीफ है। माशरे में जो लोग इंसानियत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उनकी मिसाल चिराग की मानंद है। ये चिराग चलते रहेंगे तो रोशनी फैलती रहेगी और माशरे में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। पाकिस्तानी कौम दुनिया भर में फलाही कामों पर खर्च करने में नुमाया मकाम रखती है। उन्होंने कहा कि इंडी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया में रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस सबसे बड़ा नेटवर्क है। जी, आपका शुक्रिया यासीन। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तनख्वाहें जारी कर दी। ग्रेड 16 और इससे ऊपर के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को तनख्वाहें जारी की गई हैं। मुलाजमीन को 3 रोज़ा ताख़ीर के बाद तनख्वाहें जारी की गई हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तनख्वाहें जारी कर दी हैं। ग्रेड 16 और इससे ऊपर के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को तनख्वाहें जारी की गई हैं। मुलाजमीन को 3 रोज़ा ताख़ीर के बाद तनख्वाहें जारी की गई हैं। लाहौर न्यूज़ हमेशा की तरह मज़लूम की आवाज़, और अब उसकी खबर पर एक्शन लिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तनख्वाहें जारी कर दी हैं। ग्रेड 16 और उसके ऊपर के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। मुलाजमीन को 3 रोज़ा ताख़ीर के बाद तनख्वाह जारी की गई है। मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है और अब तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं। मुलाजमीन की जानिब से इस अमल को खुशाइन करार दिया गया है, जबकि लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने तनख्वाहें जारी कर दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की देर है कि ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। महंगाई के हाथों परेशान अवाम सर पकड़कर बैठ गए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद किराए भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से दूसरे शहर का किराया 200 से 800 रुपए तक बढ़ा दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 5000 से बढ़कर 5800 रुपए हो गया। रावलपिंडी जाने के लिए अब 1900 रुपए अदा करना होंगे। पेशावर का किराया 2000 से 2200 रुपए हो गया। कोयटा का किराया 3500 से बढ़कर 4200 रुपए हो गया। मरी का किराया 2000 से बढ़कर 2200 रुपए हो गया। महंगाई के मारे आवाम चकरा कर रह गए। कहते हैं पता नहीं बात कहाँ जाकर रुकेगी। किराया कम करें, हमारी सफ़र भी कम हो, और हम बहुत गरीब आदमी हैं। इतनी हमारी तनख्वाही है जितना हम कराए गाड़ियों में किराया दे देते हैं। ये इतना पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ता जितना ये लोग किराया बढ़ा देते हैं। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमें। तनख्वाही बढ़ नहीं रही पाकिस्तान में, माशी हालात बिल्कुल नहीं है और जो किराए बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मज़दा वालों ने भी किराए बढ़ा दिए। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 30,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 25,000 की बजाय 30,000 रुपए वसूल किया जा रहा। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 13,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं मजबूर हैं, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो किरायों में इजाफा होगा। गाड़ी फुल हो तो फिर जाके जो है गुजारा होता है, नहीं तो खर्चा भी नहीं पूरा होता। 500 पे कम करते हैं, 30 पे बढ़ा देते हैं, 20 पे बढ़ा देते हैं। टाइम किधर जाएं? ये गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। यहाँ पे मेरे 25 टाइम जाते थे, जहाँ पे अभी 9 टाइम जा रहे हैं। मुसाफिर अलहदा परेशान है, ट्रांसपोर्टर अलग परेशान है। महंगाई का हम सबको पता है कि महंगाई का क्या हाल है। आवाम के साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। आउट ऑफ कंट्रोल कीमत से चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। हुकूमत नई कीमत का तयन नहीं कर पा रही और मार्केट में मनमाने निर्ख पर चीनी की फरोख्त जारी। शुगर मिल्स मालिकान कीमत के तयन के हवाले से पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँचे। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए।
चीनी की कीमत में कमी ना हुई। मार्केट में चीनी कम अज कम 150 रुपए फी किलो है। शुगर मिल से चीनी का फी 100 किलो रेट 13,700 रुपए है। वफाकी हुकूमत ने चीनी की फी किलो कीमत 98 रुपए 82 पैसे मुकर्रर की थी। ताहम अदालती मामलात की वजह से कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वक्त मार्केट में चीनी की कोई सरकारी कीमत मुकर्रर नहीं। अवाम कहते हैं चीनी का रोना क्या रोए, हर चीज महंगी है। पहले 7 रुपए कटाया सी, 20 रुपए कट्ठे ਵਧਾਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 81 ਸੈਂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਡਿੱਗਿਆ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਹੁਣ 19 ਰੁਪਏ 50 में रोज जमा हो गया, 19 रुपये 95 पैसे महंगा हो गया। गरीब आदमी की करेगा, और की करेगा गरीब आदमी, ये मरने ही मरने जानते। दूसरी जानिब केन कमिश्नर पंजाब के शुगर मिल्स मालकान से मुज़ाकरात भी ना हो सके। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स मालकान का मौक़िफ़ है कि मामला अदालत में है, इसलिए मुज़ाकरात में शामिल नहीं हो सकते। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स के वकील ने केन कमिश्नर ऑफिस को मिल्स मालकान के मौक़िफ़ से आगाह किया। शुगर मिलर्स और हुकूमत के एक पेज पर ना होने की वजह से चीनी महंगी से महंगी होती जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। अशिया ज़रूरिया के सरकारी नर्ख हवा हो गए। शहर में दूध और दही की मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का काम सिर्फ कीमतें मुकर्रर करना नहीं, इतलाक़ करवाना भी है। महंगाई के सताए अवाम मुनाफाखोरों के शिकंजे में आ गए। दूध और दही के मनमाने निरखों पर फरोख्त जारी। दही की सरकारी कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में दही 200 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। दूध की सरकारी कीमत 140 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में दूध 170 से 180 रुपए फी किलो मिल रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब, मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी मिल गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का काम सिर्फ कीमतें मुकर्रर करना नहीं, बल्कि कीमतों का इतलाक करवाना भी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ भी खाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। दूध दही बच्चों के लेके जाना बहुत परेशानी का बायस बनता है। महंगाई हो चुकी है, ना बंदा दूध ले सकता है। बाजार से चाय पीने 50 का नोट, बच्चे कहते हैं जी हम तुम्हें दें या हम खाएं। दुकानदार कहते हैं सरकारी रेट पर दूध दही बेचना मुमकिन नहीं। हुकूमत के आए दिन एक्शन होते रहते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रही। 165 रुपए किलो दूध, 70 रुपए किलो हम परचेज कर रहे हैं, तो हम उसे दही में ऐसे सेल कैसे कर सकते हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई बेकाबू हो रही है। लगता है कीमतों को कंट्रोल करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ओपन मार्केट में अशिया ज़रूरिया के नर्ख बढ़ने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा, बराबर गोश्त की कीमत में मामूली कमी। अशिया ज़रूरिया की सरकारी कीमतों के बरक्स फ़रोख्त मामूल बन गई। अब्दुल कादिर रिपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई के मुसलसल वार अवाम मुश्किलात का शिकार। सब्जी, फल और पोल्ट्री मसनूआत समेत कुछ भी पहुंच में न रहा। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। ओपन मार्केट में प्याज 80, टमाटर 170 रुपए फी किलो फरोख्त, लहसुन 550 और अदरक 1100 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। टिंडे देसी 160, बैंगन 180, करेले 150 रुपए फी किलो हैं। पालक 100, भिंडी 160, अरवी 200 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फल मजीद महंगे हो गए। मार्केट में आलू बुखारा 400, अंगूर 450, आड़ू 340 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 575 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 280 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। शहरी कहते हैं महंगाई इंतहा को पहुंच चुकी, क्या खरीदें कुछ समय नहीं आता। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी की औसत से बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि कम से कम इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। 1000 रुपया दिहाड़ी है, समझ नहीं आ रही। चिकन आपके सामने 650 रुपये किलो है। सब्जियां देख लें आप, 200 से कम कोई सब्जी भी नहीं है। मार्केट में अशिया ज़रूरिया सरकारी नरखों के बरक्स फरोख्त की जा रही हैं। रेट लिस्ट पर कहीं अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि सज़ा से एक रात कबल मुझे साबिक चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के खिलाफ बयान ना देने पर सख्त सज़ा देने की धमकी दी। आने वाले इलेक्शन को नवाज शरीफ लीड करेंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। तौहीन अदालत पर अपनी नाअहली के 5 साल मुकम्मल होने पर नून लीग की रहनुमा तलाल चौधरी की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहने लगे 5 साल कब मुझे इस एक जुमले पीसीओ के जजेस इंसाफ नहीं कर सकते की आड़ में नाअहल किया गया। पैनामा केस के फैसले के खिलाफ बोलने पर मुझे नवाज शरीफ के साथ वफादारी की सजा दी गई। सजा देने से एक रात कबल मुझे मैसेज भिजवाया कि अगर मैंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान ना दिया तो मुझे सख्त सजा दी जाएगी। सिर्फ नवाज शरीफ से वाबस्तगी
मेरे लिए जुर्म बन गया। मेरे से मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की, सिर्फ कोशिश नहीं की, अपील सुनने से एक रात पहले मुझे मैसेज भिजवाया। मैं दोबारा कह दूं, साकिब निसार ने, कि अगर तुमने मेरी मर्जी का बयान नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ना दिया तो सुबह तुम्हें सजा कम नहीं होगी बल्कि सजा बढ़ाई जाएगी। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि आज मुल्क में डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, उस वक्त नाअहलियां, रेफरेंस और तौहीन अदालत की कार्रवाइयां ना होती तो आज मुल्क जहां खड़ा है यहां ना होता। पनामा के नाम पर निहाल, दानियाल और तलाल के खिलाफ किए फैसलों की तलाफी और अपनी गलती तस्लीम की जाए। आज के हालात के जिम्मेदार वो फैसले हैं जो कि पनामा से शुरू हुए थे। ना आज रोटी 20 रुपए की होती, ना आज बिजली का यूनिट 50 रुपए का होता, ना आज डिफॉल्ट की बात होती और ना आज पाकिस्तान के ये हालात होते। इन हालात तक उन फैसलों ने पहुंचाया है। तलाल चौधरी ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा रिवायती चीफ जस्टिस नहीं होंगे। मीडिया को साकिब निसार से पूछना चाहिए कि उन्होंने ये फैसले किसके कहने पर किए। आने वाले इलेक्शन को नवाज शरीफ लीड करेंगे और चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। शहर में बादलों की गरज चमक के साथ ठंडी हवा चलने लगी। टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश भी हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम खुशगवार होता जा रहा है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बादलों की गरज चमक भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पे बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद ये ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और मौसम खुशगवार हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और सुबह के वक्त काफ़ी हब्स भी पाया जा रहा था। सुबह सूरज ने अपनी ताप दिखाने की भरपूर कोशिश की, जबकि बादलों ने अब अपने डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात मज़ीद तूफ़ानी बारिश का भी इम्कान है, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होगी। जबकि आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं हवा में नमी का तनासुब 75% के करीब बताया जा रहा है और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि आने वाले 10 रोज़ में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली होने से मौसम अबर आलूद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि सूरज भी अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा और बादल भी अपने डेरे जमाने की कोशिश करेंगे। मज़ीद महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड भी महसूस किया जा सकता है। शुक्रिया शाहजेब।